देखो राजा, इलस्ट्रेशन 27 बिल्कुल सिमिलर है लाइक एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन 4 we did. Yes or no? So the question is saying balance sheets of Amar and Akbar as on 1st January 2021 and 31st December 2022 means opening and closing is given. Opening is the first column, closing is the बोलो राजा second column. Okay. Next, creditors, Mrs. Amar's loan from SBI Capital. और ऊपर नाम तो हमें की समझ आया. Is it a question of company? No. There are two names, so it's a partnership form. Capital पे भी दोनों combined given. That's okay. क्योंकि partnership तो solve करने नहीं कि सानू अलग अलग capital देती है. Cash, debtor, stock, machinery, land and building. During the year, a machine costing rupees 25,000, accumulated depreciation 7,500 was sold for rupees 12,500. Working note बनता है. Cost, AD, WDV, selling price, profit loss. The provision for depreciation against machinery as on 1st January 21 and 62 was 62,500 and as on 31st December 21 was 1 lakh. मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ opening provision for depreciation and closing provision for depreciation given. अगर opening closing given है means it is relating to machinery, so means this value is at net. This you need to remember. But we need that gross, so we'll add back opening to opening and closing to close. Yes or no? So first of all, machinery account. To balance brought down, by balance carried out. Clear, Raja? Then the depreciation amounts will be the brought down and carried down for provision for depreciation. Now we'll make the working. They're saying machine costing 25,000, accumulated depreciation 7,500. His WDV comes out to be 17,500. It was sold for 12,500. There is a loss of rupees 5,000. So next key point I have buy cash hyphen sale 12,500. Buy P&L hyphen loss 5,000. Both of these steps are done. Next one, the depreciation of the asset sold is to be cancelled at the time of sale of asset by passing a cross entry, that is quickly with the trend, that is provision for depreciation. Yes or no? Everything done. Now we'll close first which account? The second account, है ना? So this is by P&L hyphen depreciation provided and ऊपर match हो. Next point की given net profit. नेट प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, तो इस क्वेश्चन जब भी दोनों सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन आना, you need to do, what do you need to do? Use the formula of closing capital. Closing capital is equal to opening capital plus net profit या net loss minus plus additional capital और fresh capital और होगा opposite minus drawing. Yes or no? सानू रहता है opening capital given, closing capital given है, net profit given है, एक balancing figure मिलेगा, you can write fresh capital. अगर वो नेगेटिव आ रहा है means you can use drawing. So opening capital put कितनी, closing capital put कितनी, net profit put कितना, balancing figure की आगे क्लियर है? उन्हें करते क्यों? बिकॉज कंपनी में क्वेश्चन अच्छी करते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स है ना, सारी चीजें कर ले. कैपिटल्स तो चलो पर्टिकुलर आई है कि इशू एंड रिडेम्पशन की गल्ला आ शेयर कैपिटल तो गल्ला है ही नहीं. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ओनली कैपिटल मींस ओनली पार्टनरशिप और सोल प्रोवाइडर. तो शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल है. कैपिटल है तो चेंजेस कितना होते हैं, फ्रेश कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. So fresh capital is a part of fresh capital and drawings. Both are a part of financing activity in cash flow and
FFS in fund flow. Yes or no? So अगर fresh capital आई था it is a source and अगर drawings हुई था it's an application. सानू की मिले drawings. We will use this drawings in FFS. Okay. Now, so first statement की बना दे बोला. Statement showing changes in working capital. First point बोला. Current assets, cash put कर दोगे, debtors, stock. बस current assets हो गए. Total आ जाओगे. Then minus CL. कितने? Creditors. 1 lakh and 1 lakh 10,000. CL आ गया. दोनों के difference तो you will get working capital. कितने तक solve हो गया? Then working capital is increasing. So you will write net increase in working capital and you will match the total. First column balance will go to fourth. ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ बोलो करंट एसेट इंक्रीज होए था पॉजिटिव डिक्रीज होए था नेगेटिव करंट लायबिलिटी इंक्रीज होई था नेगेटिव एंड घटी था ਉਹਦੇ ਨਾਲ और आ वाली चीज वैल्यू पुट करके ਤੁਹਾਡੇ कॉलम्स ਉਹਦਾ ਵੀ टोटल मैच हो जाऊगा यस और मैच होना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਇਆ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਇਆ ਮੀਨਸ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ that's yes or no so it's an increase in working capital step 2 FFO that is funds from operations starts with net profit here net profit is 1,12,500 then add क्वेश्चन की है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है प्रोविजन अकाउंट से आओ उस तो बाद और लॉस ऑफ सेल सी वो भी ऐड हो जाएगा और दोस्तों कोई रिटर्न ऑफ किया कुछ भी हो डेप्रिसिएशन आ वाली तो नहीं आनी ये तो किकली वाली डेप्रिसिएशन है बीवेयर हाँ उससे प्रोवाइडेड वाली आनी अकाउंट ऐसा ना हाँ वाली हाँ थोड़ी आनी बीवेयर ठीक है देन इन्हीं पॉइंट सी एफएफओ then you need to make FFS उत्ते FFO the positive at the source working capital increase at the left or right side means application ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ बैलेंस शीट देखो पुराने क्रेडिटर्स नहीं आने मिसेस अमर फ्लोर डिक्रीज मतलब एप्लीकेशन राइट साइड लोन फ्रॉम एसबीआई इंक्रीज मतलब सोर्स ऑफ मनी सोर्स वाली साइड आ गया कैपिटल ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਸ और फ्रेश कैपिटल सोचे थी और कर लिए ਸੀ पहले 3 चीजें एसेट्स ਦੇ नहीं आने मशीनरी थी परचेज कोई नहीं थी सेल थी तो सेल विल कम ऑन sources side land purchased application और building purchased है था application कोई डिविडेंड वगैरह था नहीं सिर्फ कैपिटल कंपनी का क्वेश्चन है ही नहीं तो अमर्स लोन द पॉइंट purchase of land purchase of building sale of machinery raising of loan any doubt similarly like exam corner question number 4 okay Raja yes or no so now the new and most important topic of fund flow statement पहले तक तुसी fund flow statement कर रहे सी basics this was just basics of fund flow basics क्यों एक अदा क्वेश्चन डिविडेंड लाइक सीगा डिविडेंड रिसीव डिविडेंड पेड इट वाज अ गुड क्वेश्चन बट बाकी सारे बेसिक्स कहना मतलब you were learning how can we make statement of changes in working capital we were learning fund flow statement funds from operations वो सारा ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਮਾਈਂਡ ਚ ਬੈਠ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀਏ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ फंड्स फंड्स आ रहे जा रहे हो नहीं क्लियर होगा फंड्स का मतलब कितना सोचिए कैश फ्लो तो बहुत इजी है
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज या डिक्रीज? फंड फ्लोज वो इतना इजी पॉइंट नहीं है. फंड्स दी मूवमेंट मैटर्स ऑन करंट एंड नॉन करंट आइटम. ये लिखे पढ़ो. फॉर फ्लो ऑफ फंड्स वन आइटम शुड बी करंट एंड अदर आइटम शुड बी. कैश का इजीली समझ आता. कैश या बैंक कमिंग इन, कैश और बैंक गोइंग आउट, कैश फ्लो हो गया. फंड्स का नहीं समझ आता. सोर्स एप्लीकेशंस का चलो ਅਸੀਂ उदा ਦਾ concept ही थोड़ा सोचते हैं कितने पैसे आ रहे हैं. फंड फ्लो है कि नहीं वो नहीं समझ आ रहा है. ठीक है. तो की लिखे है फॉर फ्लो ऑफ फंड्स वन आइटम शुड बी करंट एंड द अदर आइटम शुड बी नॉन. फर्स्ट पॉइंट पढ़ो. फिर लिखे इशू ऑफ शेयर्स. नॉर्मली इशू ऑफ शेयर्स आए ना क्वेश्चन. उसी में फंड फ्लो स्टेटमेंट पाया ना सोर्सेस. ਉਹਦੀ एंट्री सोचो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कुछ बैंक किया करंट करंट एसेट. शेयर कैपिटल की ਹੁੰਦਾ लॉन्ग टर्म मींस नॉन करंट है. एक साइड करंट एक साइड नॉन करंट ਅਸੀਂ पाया ना फंड फ्लो स्टेटमेंट. इस करके फ्लो होया. फ्लो ऑफ फंड्स टिक कितना यस और इनफ्लो होया सोर्सेस के पास. सेकंड पढ़ो की लिखा परचेज ऑफ मशीनरी. एंट्री बोलो. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ मशीनरी की है करंट और नॉन करंट. नॉन करंट. और कैश बैंक की है करंट. तो फ्लो ऑफ फंड्स हो रहे हैं. इनफ्लो आउटफ्लो. आउटफ्लो सोर्स या एप्लीकेशन. एप्लीकेशन साइड है लिखोगे. थर्ड पढ़ो. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. इन्हों कभी पाया फंड फ्लो स्टेटमेंट. वैसे तो इतने भी आ रहे हैं. यदि एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. कैश किया करंट डेटर्स भी किया करंट. तो देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड्स. एफएफएस नहीं है. यही सब तो इंपॉर्टेंट चीज है जिदे नाल बढ़िया बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व होने. बच्चों ने रूल सिखाते भी नहीं कहीं. कैश पेड टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स टू कैश. क्रेडिटर्स किया करंट कैश किया करंट. मतलब नो फ्लो. गेन आया था नहीं कभी एफएफएस. परचेज ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स है ना. मशीनरी परचेज की थी ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਤੁਸੀਂ डिबेंचर इशू की. मशीनरी किया नॉन करंट. डिबेंचर्स भी किया नॉन करंट. वो फ्लो अगेन. तो नॉर्मली मशीनरी परचेज ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਐਫਐਫਐਸ. ਬਟ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ डिबेंचर इशू ਕੀਤਾ ਤਾਂ नॉन करंट है. तो ਇੱਥੇ भी नो फ्लो ऑफ. समझे रीजन कितनी क्लैरिटी जरूरी सी इस टॉपिक पे. क्वेश्चन है एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी परचेज्ड फॉर रुपीज 30,000 पेबल इन शेयर्स. फॉलोइंग एसेट्स वर परचेज. ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ परचेज ऑफ या इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. ਉਹਦਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਸੈਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ. ਸਟਾਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ. ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ शेयर्स. स्टॉक आया 10,000 का. मशीनरी आई 12,500 की. ਉਹਦੇ अगेंस्ट की दे रहे शेयर कैपिटल किन्ने दे 30,000. ज्यादा नहीं दे रहे कुछ. किन्ने बन रहे सी 22,500. दे किन्ने देते 30,000. किन्ना ज्यादा 7,500. दैट इज अ गुडविल. आई गल यार. जब ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ को एसेट्स तो ज्यादा वैल्यू पे कर रहे कंपनी तो दैट इज द गुडविल ऑफ द कंपनी. ਤੁਹਾਡੀ पूरी जर्नल लाइफ है स्टॉक अकाउंट डेबिट मशीनरी डेबिट गुडविल डेबिट टू शेयर कैपिटल. बट उन्हें तो स्टॉक की है करंट. मशीनरी की है नॉन करंट. गुडविल की है नॉन करंट. शेयर कैपिटल की है नॉन करंट. क्रेडिट साइड एक चीज है डेबिट से मल्टीपल चीज. क्रेडिट की है नॉन करंट ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦਾ करंट ਤਾਂ फ्लो ऑफ फंड्स काउंट होएगा. स्टॉक करंट है ਇਹਦਾ फ्लो ऑफ फंड्स काउंट होगा. मशीनरी नॉन करंट फ्लो ऑफ फंड्स काउंट नहीं होना. गुडविल नॉन करंट नहीं काउंट होना. तो फ्लो ऑफ फंड सिर्फ कितना होया 10,000. और लिखोगे कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल. ये हो रहा है शेयर कैपिटल इशू हो रही. लिखोगे फंड फ्लो स्टेटमेंट लिखोगे सोर्स से एप्लीकेशन इशू ऑफ शेयर कैपिटल. सोर्स से लिखोगे बट अमाउंट कितना लिखना सिर्फ
बस नॉन करंट के सामने करंट कितना बैठा 10,000. नॉन फंड फ्लो इज व्हेन योर वर्किंग कैपिटल मूव्स. वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है पहले दिन लिखा सी फंड्स मींस वर्किंग कैपिटल. यस और सीएसीएल करंट कुछ मूव कर रहा है. करंट टू करंट मूव किया तो फंड्स ही रहे ना. करंट तो नॉन करंट जा रहा है वेदर यू एसेट्स और लायबिलिटी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਇਆ. ਸਾਡਾ रेगुलर वाला पैसा किसी लॉन्ग टर्म एसेट से लग गया या लॉन्ग टर्म वाला पैसा शॉर्ट टर्म चीज से लग गया ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡ ਫਲੋ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਫਲੋ. समझ रहे चीज. यस और नो. ਉਹਦੇ फ्लो ऑफ फंड्स होया. यस कितना होया 10,000 इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिख के बाद बट ओनली 10,000. डिलीवरी वैन परचेज 25,000 asset. 5,000 paid immediately and the balance in 20 monthly installments. Balance in 20 monthly installments of rupees 1,000 each together with interest. Interest में ignore करो तब उधो देना है. आज का doesn't matter. Van कितने दी 25,000. Van is for 25,000. Delivery van debit 25,000. की पे कितना हो देगा कैश टू कैश आ गया 5,000. बचे कितने 20,000 किनू ड्यू रह गए वेंडर में. मींस एंट्री आई डिलीवरी वैन डेबिट टू कैश एंड टू वेंडर. एग्री. बट अगे दसो ਇਹ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋ ਆਫ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ. ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਕੀ ਹੈ ਨॉन करंट. ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ कैश की है करंट. और वेंडर वेंडर ਨੂੰ पे कर रहे हो तो करंट के नॉन करंट. क्यों आज थोड़ी पे कर रहे नहीं होनी थोड़ी कर. लाइबिलिटी तो कोई भी हो सकती पहली गल समझो. लाइबिलिटी मैं चेस्टा के पैसे दे तो विद इन ईयर दे दा करंट है बाद च दवा नॉन करंट. इन्नी गल है ना लाइबिलिटी कैन भी करंट एज वेल एज नॉन करंट. तो इतने वेंडर के नाम से नहीं कोई कंसेप्ट. पेमेंट स्टाइल से कंसेप्ट. पेमेंट कितना कर रहे 20 इंस्टॉलमेंट से कर रहे हो. 20 चो 12 तो विद इन ईयर होगी मतलब 12,000 करंट होया एंड 8,000 नॉन करंट. वेंडर नेम डजंट टेल एनी. सही है. इट कैन बी करंट इट कैन बी नॉन करंट. नाम से नहीं कोई कंसेप्ट. करंट नॉन करंट किहनू कह रहे विद इन ईयर तो करंट लॉन्ग टर्म तो नॉन. ठीक है. सो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ट्विस्ट है इस क्वेश्चन कि ਜਿਹੜਾ 20,000 है तो 12,000 ਦੀਆਂ ਬਣੂਗੀਆਂ इंस्टॉलमेंट्स विद इन द ईयर. दोज विल बी करंट. एंड ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ 8 इंस्टॉलमेंट्स ਆ ਉਹ आफ्टर 1 ईयर दैट विल बी नॉन करंट. द मींस ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ एंट्री ਆ ਆਈ ਦੇਖੋ डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश एंड टू हायर वेंडर. यस और डिलीवरी वैन डेबिट्स की है वो की है नॉन करंट है. कैश करंट है. हायर वेंडर से 20,000 के दो पार्ट्स बन 12,000 करंट लाइबिलिटी एंड 8,000 नॉन करंट लाइबिलिटी. ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ. एवरीवन यस और नो. ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ नॉन करंट ਆ. ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ करंट. करंट ਕਿਹੜਾ आ रहा 5,000 और 12,000 मिला के फ्लो रिकॉर्ड करोगे 17,000 का. फंड फ्लो स्टेटमेंट लिखोगे परचेज ऑफ डिलीवरी वैन कितना अमाउंट 17,000 जो कि बच्चे सोच भी नहीं सकते नॉर्मल ये कंसेप्ट ना कितना. एंड डिलीवरी वैन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार. बड़े चीज कोई डाउट क्लियर. जेडे बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन था ना मैं 10-10 बार सॉल्व करवा के भेजने. दो दिन बाद चाहे होमवर्क ले लिया तो जिस दिन 5 बार हो गया ना घर 5 बार मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट है क्वेश्चन था नहीं मल्टीपल परफेक्शन चाहिए वो क्वेश्चन.
हमारी चीज प्रेजेंटेशन वर्किंग सारा कुछ क्लियर जो चाहिए जितने जितने नाल 15 नंबर पूरे मिले एक नंबर भी ना मैटर करता कि नहीं करता चेष्टा किन्ने 78 करता हम 202 नंबर मैटर करते बात चुभते ना पेपर तो मैं 80 वाला ठीक है ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਆਈਏ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬੰਡਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ 45 ਅਬਵ 50 ਅਬਵ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੀ 52 ਹੋਣੇ ਟੀ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਦੈਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਡਲ ਦੀ ਚੈਕਿंग उस हिसाब की बट अगर इस पेपर ना पेपर में देखे हैं सपोज के अगर वो किसी दो बच्चों ने भी 80 आए हैं फिर दो बच्चों ने 75 आए हैं मेरे 72 आए हैं तो मतलब मेरे और उसके पेपर में फर्क होएगा ये सुनो आई कैंट से एनीथिंग ना जे या तो दिखते ना हो स्टिल अगर यहाँ पे मैंने पूरी परफेक्शन की गल आ तो मैं रिवेल करूँ तो इतने परचेज ऑफ डिलीवरी वैन इन इदा के क्वेश्चन जब मैं लॉन्ग करवाऊंगा कोई भी मैंने नाल रिटर्न चाहिए ठीक है पक्का किसी ने मैंने ये नहीं कहना ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰ कर डजंट मैटर कोई रीजन होगी कि मैं 10 बार भी करवाऊंगा ठीक है रोज तो नहीं काम देता ना जो देना फिर देना दे ठीक है चलो इन्हें नोट करो कंसेप्ट